ہے کس کے تخیل کا شہکار اودھ نامہ. ناظرین آداب. 20 شوال المکرم مطابق 13 جون 2020 کے اودھ نامہ کے وائس ایڈیشن میں میں ہارون رشید آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. چھوٹے ٹیکس دہندگان کو ریٹرن بھرنے میں راحت دیے جانے کی خبر اودھ نامہ کے صفحہ اول کی پہلی سرخی میں ہے. تفصیل کے مطابق جی ایس ٹی کونسل نے کورونا وائرس کے بحران کے پیش نظر چھوٹے تاجروں کو 5 کروڑ روپے تک کا ریٹرن بھرنے میں راحت دیتے ہوئے 2019 جولائی سے جنوری 2020 تک جی ایس ٹی R3B فارم بھرنے پر عائد ہونے والے جرمانے کی رقم زیادہ سے زیادہ 500 روپے طے کر دی ہے. آج منعقدہ جی ایس ٹی کونسل کے 40ویں اجلاس میں ریٹرن فائل کرنے سے متعلق متعدد فیصلے کیے گئے. لیٹ فیس میں جو کمی کی گئی ہے وہ تمام جی ایس ٹی R3B کے لیے نافذ ہے اور 1 جولائی سے 30 ستمبر تک لاگو رہے گی. تاہم جن ٹیکس دہندگان کو ٹیکس نہیں چکانا ہے وہ بغیر کسی جرمانے کے جی ایس ٹی R3B فارم بھر سکتے ہیں. کورونا معاملے میں ہندوستان کے چوتھے مقام پر آنے کی خبر بھی صفحہ اول کی دوسری سرخی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے سب سے زیادہ 10,956 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور اب ہندوستان دنیا میں سب سے زیادہ متاثرہ ممالک کی فہرست میں برطانیہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا میں چوتھے مقام پر پہنچ گیا ہے. ناظرین، وزیر اعلیٰ یوگی کی سرکاری رہائش گاہ سمیت 50 دیگر عمارتوں میں دھماکے کی دھمکی کی خبر بھی صفحہ اول پر ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ لکھنؤ میں ڈائل 112 پر کسی نے واٹس ایپ فون سے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے سرکاری رہائش گاہ ڈائل کے ہیڈ کوارٹر اور 50 دیگر عمارتوں میں دھماکے کی دھمکی دی ہے. اس خبر کے بعد پولیس ہائی الرٹ ہو گئی ہے. لکھنؤ میں تو جگہ جگہ پر گاڑیوں کی چیکنگ بھی شروع کر دی گئی ہے. اس معاملے میں پولیس چھان بین میں مصروف ہے. لکھنؤ کے گوتم پلی تھانے میں رپورٹ کرانے کی ہدایت کے ساتھ ATS کو بھی جانچ میں لگا دیا گیا ہے. معروف شاعر گلزار دہلوی کے انتقال کی خبر بھی صفحہ اول پر ہے. خبر کے مطابق دور کے بزرگ شاعر گلزار دہلوی آنند موہن جوشی کا کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے کے 5 دن بعد جمعے کی دوپہر کو انتقال ہو گیا. گلزار دہلوی اگلے مہینے 94 سال کے ہونے جا رہے تھے اور انہوں نے نوئیڈا میں واقع اپنی رہائش گاہ پر آخری سانس لی. اردو کے معروف ناقد پروفیسر شارف رضولوی نے گلزار دہلوی کے انتقال کو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کا عظیم نقصان بتاتے ہوئے کہا ہے کہ گلزار جوشی ہندوستان کے معمر ترین شاعروں میں تھے. وہ ایک بہت اچھے شاعر، بہت اچھے انسان اور ایک بہت اچھے ادیب تھے. انہوں نے کئی نسلوں کی ذہنی تربیت کی. ان کا ایک ادارہ تھا جس کے ہفتہ روزہ میٹنگ ہوا کرتی تھی. وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں تھے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ عرس میں شریک نہ رہے ہوں. انہوں نے اپنے عمل سے اور اپنی شاعری کے ذریعے صوفیانہ خیالات کو عام کرنے کی کوشش کی. ایسے سیکولر ذہن کے لوگ اب نایاب ہیں. ممبئی فساد کی آزادانہ جانچ کرنے والے جسٹس ایچ سریش کے فوت ہونے کی خبر بھی صفحہ اول پر شائع کی گئی ہے. خبر کے مطابق ممبئی ہائی کورٹ کے سابق جج ایچ سریش کا گزشتہ شب انتقال ہو گیا. وہ 91 سال کے تھے. بابری مسجد کی شہادت کے بعد ممبئی میں ہونے والے دونوں دور کے فرقہ وارانہ فسادات کی ایک آزاد پینل نے بھی تحقیقات کی تھی جس کے وہ سربراہ تھے، جبکہ سری کرشنا کمیشن کی کارروائی میں بھی وہ پیش رہے. جسٹس سریش مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے میں کبھی پیچھے نہیں رہے. عالمی خبروں کے صفحے پر انڈونیشیا کے بعد ملیشیا کا بھی اپنے شہریوں کو حج پر نہ بھیجنے کے اعلان کی خبر ہے. تفصیل کے مطابق خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ملیشیا کے وزیر مذہبی امور محمد البقری نے تصدیق کی کہ اس سال کوئی بھی ملیشیائی شہری حج ادا نہیں کر سکے گا. وزیر مذہبی امور کے مطابق کورونا کی وبا کے باعث 31,600 عازمین کی حفاظت کے لیے رواں سال حکومت نے حج منصوبے کو منسوخ کیا ہے اور انہیں امید ہے کہ عازمین حکومتی فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے ہی مسلمان آبادی والے سب سے بڑے ملک انڈونیشیا نے بھی شہریوں کو حج پر نہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے. افغانستان کی ایک مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دھماکے میں امام سمیت 4 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبر بھی صفحے کے درمیانی حصے میں نمایاں ہے. غیر ملکی خبر رساں ادارے AP کی رپورٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آریان نے بتایا کہ بم مسجد کے اندر رکھا گیا تھا، تاہم ان کے پاس کوئی مزید تفصیلات نہیں ہیں. دھماکے کی اب تک کسی نے فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم رواں ماہ کے آغاز میں ایک مسجد پر حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی. دھماکے میں ہلاک ہونے والے مسجد کے امام شہر کے معروف مذہبی رہنماؤں میں سے ایک تھے. اسی خبر سے متصل خبر میں بتایا گیا ہے کہ ناروے کی عدالت نے 2019 میں اوسلو کی مسجد میں فائرنگ اور اپنی سوتیلی بہن کو قتل کرنے کے جرم میں دائیں بازو کے انتہا پسند کو 21 سال قید کی سزا سنائی ہے. عالمی فوجداری عدالت پر امریکی پابندیاں نامنظور. اس سرخی کی تفصیل کے مطابق
यूरोपीय यूनियन में खारिजा उमूर के सेक्रेटरी जोसेफ बोरेल ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां आयद करने के अमरीकी फैसले पर कड़ी नुक्ताचीनी की। मिस्टर जोसेफ बोरेल ने जुमेरात की शब अमरीका के इस इक़दाम की मजम्मत करते हुए इसे बाइसे तशवीश करार दिया। उन्होंने आलमी सतह पर अदल और इंसाफ के क़याम में आलमी फौजदारी अदालत के किरदार को अहम बताते हुए सभी मुमालिक से अपील की कि वो इस अदालत के एहतराम को बाकी रखते हुए उसकी हिमायत करें। ट्रंप के बैनुल अक़वामी अदालत के ओहदेदारान पर पाबंदी की इजाजत देने की खबर भी जली सुर्खी में है। खबर के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौजियों, इंटेलिजेंस, हुक्काम और इसराइल समेत इत्तेहादी ममालिक के खिलाफ जंगी जराइम पर मुश्तमिल तहकीकात पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC के अहलकारों पर इक़्तिसादी व सफरी पाबंदियां आयद करने का इख्तियार दे दिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत किसी भी ऐसे फर्द पर जो अमरीकी अहलकारों की तफ्तीश, गिरफ्तारी, नजरबंदी या कानूनी कार्रवाई के लिए अमरीका की रजामंदी के बगैर कोशिश करता है, उस पर पाबंदी आयद की जा सकती है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी के तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बारे में तशवीश का इजहार किया है। अफगानिस्तान के सदर गनी का तालिबान कैदियों की रिहाई का अमल जल्द मुकम्मल करने का ऐलान किए जाने की खबर भी सफ़े के ज़ैल में है। न्यूज़ के मुताबिक अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने जुमेरात को वाशिंगटन DC में कायम अमरीकी थिंक टैंक और यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के ज़ेर एहतमाम तकरीब में वीडियो खिताब के दौरान ऐलान किया कि तालिबान के मजीद 2000 कैदियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा, जिसके बाद बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकेगी। इसके अलावा सऊदी इत्तेहाद की तरफ से यमन में 2 माह में 2000 हमले किए जाने, कोरोना के सामने दुनिया के बेबस होने और सऊदी अरब में मुसलसल दूसरे रोज कोरोना वायरस के 3700 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए जाने की खबरें भी आलमी खबरों के सफे पर नुमायां हैं। नाज़रीन, 13 जून के वज़नामा के सफा नंबर 3 की पहली सुर्खी में वजीर आला उत्तर प्रदेश का यह ऐलान है कि आगरा समेत 11 अजला में माहिरीन संभालेंगे बिगड़ते हालात। खबर के मुताबिक वजीर आला ने कहा है कि जिला आगरा, मेरठ, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, कानपुर शहर, झांसी और बस्ती में प्रोफेसर सतह के सीनियर और तजुर्बेकार माहिरीन को भेजा जाएगा, जो इलाज के हवाले से मकामी मेडिकल टीम से मुनासिब मुशावरत और मदद फराहम करे। उन्होंने इन अजला में प्रिंसिपल सेक्रेटरी सतह के अफसरान को नामजद करने की हिदायत दी और कहा कि यह अफसरान मुतल्लिका अजला में कैंप लगाते हुए जिला इंतजामिया के कामों की निगरानी करें और अफसरान के साथ ताउन करें। वजीर आला ने कहा कि महकमा सेहत के जरिए अजला में तैनात एडिशनल डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर सतह के मेडिकल अफसरान ये यकीनी बनाए कि अस्पतालों में मरीजों को दवा, मकवी ग़िज़ा और पीने के लिए गर्म पानी मिले। उन्होंने कहा कि इंसानी वसाइल की अदम मौजूदगी में न चलने वाली यूनिटों की फहरिस्त तैयार की जाए। इसकी बुनियाद पर उन यूनिटों में मजदूरों, कारकुनों को मुलाजिमत देने के इंतजाम किए जाएं। इससे जहां एक तरफ सनती यूनिटें शुरू करना मुमकिन होगा, तो दूसरी तरफ मजदूरों और कामगारों को रोजगार मिलेगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बाल श्रमिक विद्या योजना का इफ्तिताह किए जाने की खबर भी सफा 3 पर नुमाया है। खबर में कहा गया है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर बैनुल अक़वामी बच्चा मजदूरी इंसदाद यौम के मौके पर रियासत में घरेलू नामुसाइद हालात की वजह से बच्चा मजदूरी करने वाले कामकाजी बच्चों और उनके कुंबों को माली मदद फराहम कराए जाने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का इफ्तिताह किया। वजीर आला के मुताबिक इस स्कीम का मकसद कामकाजी बच्चों को बच्चा मजदूरी से अलग कर तालीम से जोड़ना है। जिला महोबा में कानकुनी के दौरान धमाकाखेज मादे पर आसमानी बिजली से जानी नुकसान पर वजीर आला के गहरे रंजोगम का इजहार किए जाने की खबर भी सफा 3 पर नुमाया है। वजीर आला योगी ने जिला मजिस्ट्रेट और SP को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम करे। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जख्मी होने वालों को मुनासिब इलाज मुहैया करा के मुतासिरा अफराद की हर मुमकिन मदद की जाए। इसके अलावा वजीर आला के जरिए MLA और साबिक वजीर ममलिकत पारसनाथ यादव के इंतकाल पर गहरे रंजगम का इजहार किए जाने की खबर भी सफा 3 पर है, जिसमें वजीर आला ने आज यहानी पारसनाथ यादव के सोगवार लवाहिकीन से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए मुतवफ़्फ़ी की रूह के तस्कीन की दुआ की। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का बयान भी सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महकमा सेहत के सीनियर अफसरों व नोडल अफसरों का मुस्तकिल तौर से मुआयना किया जाए। खबर के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोरोना पर मुअस्सिर कंट्रोल और रोकथाम के लिए हिदायत जारी की है कि सभी अस्पतालों का महकमा सेहत के सीनियर अफसरों, नोडल अफसरों और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों के जरिए मुस्तकिल तौर से मुआयना किया जाए। इन अस्पतालों में तैनात मेडिकल अफसर और नर्सिंग स्टाफ के जरिए मुस्तकिल तौर से वार्ड में जाकर मरीजों की जरूरी देखभाल की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी अवामी जगह पर 5 से ज्यादा शख्स जमा न हो।
नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सफ़ा 3 पर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बैन रियासती रास्तों की कुशादाकारी और तौसीकारी का काम तेजी पर है। खबर के मुताबिक जनाब केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि रियासत में सियाहत को फरोग देने और आवाम को बेहतर से बेहतर आमदरफ्त की सहूलत फराहम कराने के मकसद से 599 करोड़ रुपए की लागत से रियासत से वाबस्ता दीगर रियासतों तक जाने वाले अहम रास्तों, सड़कों की कुशादाकारी और तौसीकारी का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। वजीर जल शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह ने गंगा संगठन के हरिद्वार डिवीजन व जमुना संगठन के सहारनपुर व मथुरा डिवीजन का जायजा लेते हुए सैलाब से पहले तैयारियों की सुस्त रफ्तार पर गैर इत्मीनानी जाहिर करते हुए मानसून से पहले सभी काम पूरे किए जाने की सख्त हिदायत जारी की है। डॉक्टर महेंद्र सिंह कल देर रात अपने सरकारी रिहायशगाह पर मशरकी गंगा व जमुना संगठन से मुताल्लिक सैलाबी प्रोजेक्टों का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए वक्तन फवक्तन जारी की गई हिदायत के सिलसिले में सैलाब से निपटने की तैयारियां पुख्ता तरीके से की गई, जिसके नतीजे में इस हुकूमत की मुद्दत कार में सिर्फ 42,000 हेक्टेयर जमीन ही सैलाब की जद में आ सकी, जबकि माजी में तकरीबन 5 लाख प्लाट मुतासिर होते थे और बड़े पैमाने पर नुकसान हो जाया करता था। अफसोस है उन पर जो इख्तिदार में बैठकर भी लाचार हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव के इस बयान से अवधनामा के अपना वतन का आगाज हो रहा है, जिसमें उन्होंने बिहार की नीतीश हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा, आज मेरे बिहार के बाशिंदे सदमे में हैं, दुख में हैं, सहूलियात के फुकदान में जी रहे हैं, सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो मेरे मन में तकलीफ का एहसास हो रहा है। जब सुनता हूँ रोते हुए मजदूरों की तकलीफ, महसूस करता हूँ उनके आंखों के आंसू, तो लगता है कि अपने अंदाज में कहूँ, काहे फिक्र करता है, हम हैं ना साथ में। लेकिन हालात से मजबूर हूँ, साजिशों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ। मुझे अफसोस होता है उन पर जो आज़ाद हैं, इख्तिदार में बैठकर भी लाचार हैं। उन्हें कैसे नींद आ रही होगी, कैसे खाना खाया जाता होगा। ये बयान लालू प्रसाद यादव के ट्विटर हैंडल से उनके 73वीं यौम पैदाइश के मौके पर शेयर किया गया है। नस्ल परस्ती पर मबनी अंग्रेजी टेक्स्ट बुक को निसाब में शामिल करने पर 2 टीचर बरतरफ। मामला मगरबी बंगाल के मशरकी बर्दवान जिले का है, जहां नस्ल परस्ती को फरोग देने के इल्जाम में हुकूमत के इमदाद याफ्ता स्कूल के 2 टीचरों को बरतरफ कर दिया गया है। उन दोनों टीचरों पर इल्जाम है कि उन्होंने प्री प्राइमरी जमात में ऐसी किताब शामिल की है जिसके टेक्स्ट बुक में अंग्रेजी के अल्फाबेट की शिनाख्त में यू फॉर अगली यानी बदसूरत बताते हुए एक सियाह फाम शख्स की तस्वीर दिखाई गई है। रियासती वजीर तालीम पार्थू चटर्जी ने सफाई देते हुए कहा है कि यह किताब रियासती हुकूमत की तजवीज़ करदा निसाब का हिस्सा नहीं है। स्कूल इंतजामिया ने अपने तौर पर यह किताब अपने निसाब में शामिल कर रखी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में मेयार का अहम रोल। पीयूष गोयल के इस बयान के तहत अखबार लिखता है, मिस्टर गोयल ने जुमे के रोज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के कामकाज का जायजा लेते हुए कहा, गुड्स एंड सर्विसेज के मेयार से मुल्क का मुस्तकबिल तय होगा। खुद इन्हिसार हिंदुस्तान मुहिम में मुल्क मेयार से भरपूर मसनूआत और खिदमात के मैदान में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मेयारी मसनूआत और खिदमात से न सिर्फ घरेलू मार्केट में पकड़ बनेगी बल्कि आलमी मंडी में हिंदुस्तानी मसनूआत मुसाबिकत पजीर हो जाएंगी। गुलजार देहलवी के इंतकाल पर ऑनलाइन नशिस्त के एहतमाम की खबर भी इसी सफ़े पर मौजूद है। एहसास एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन लखनऊ के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद अमल में आया, जिसमें दिल्ली उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहपर रसूल ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, गुलजार देहलवी का उर्दू ओढ़ना बिछोना थी। उर्दू की अहमियत और बहैसियत ज़बान इसके हुकूक के लिए वो एक मुद्दत तक लड़ते रहे। मानू लखनऊ कैंपस के असिस्टेंट प्रोफेसर उमैर मंजर ने अपने बयान में कहा, गुलजार देहलवी महज एक शायर और अदीब ही नहीं थे बल्कि उर्दू तहजीब और सकाफत के नुमाइंदे भी थे। उर्दू ज़बान से उन जैसा इश्क और उसके लिए कुछ कर गुजरने का हौसला कम लोगों में था। इन हज़रात के अलावा मोहम्मद उवैस संभली और परवेज़ मलिकज़ादा ने उनकी अदबी खिदमत और शायरी की खूबियाँ बयान करते हुए उनको खराज अकीदत पेश किया। इन खबरों के अलावा दिल्ली जामा मस्जिद के बाद फतेहपुरी मस्जिद के दरवाजे मुफ्ती मुकर्रम के ऐलान से हुए बंद और वजीर सेहत सत्येंद्र जैन का बयान भी अहमियत का हामिल है, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन में तोसी के शुबहात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि राजधानी में लॉकडाउन में इजाफा नहीं किया जाएगा। हुकूमत मजदूरों, किसानों और नौजवानों को सता रही है। आखिरी सफ़े की इस पहली सुर्खी की तफसील में अखबार लिखता है, समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश बदनज़मी और इंतशार के संगीन बहरान से गुजर रहा है। महकमा इंतजामिया में आपसी खींचतान और कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से हालत ये है कि पुलिस फोर्स आवाम को धमकाने और वसूली में मसरूफ है। बीजेपी तमाम अपोजिशन लीडरों को झूठे मुकदमात में फंसाने को कारकर्दगी मानती है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी सूरत हाल में पुलिस इंतजामिया का किरदार शकूक व शुबहात की जद में है। जिस तरह कोरोना बीजेपी के हाथ में नहीं आ सकता, उसी तरह अमन व अमान भी बीजेपी हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गया है। खबर से मुंसलिक बॉक्स में अखिलेश यादव की इजहार ताज़ियत शाये हुई है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर
पारस नाथ यादव के इंतकाल पर इजहार रंजो गम किया है। इल्म जब खामोश रहता है तो कुरान कहलाता है और जब बोलता है तो अहले बैत कहलाता है। ये अल्फाज मौलाना यासूब अब्बास ने मौलवी हुसैन रिजवी के पंजुम की मजलिस में कहे। ये मजलिस ऑनलाइन मुनक्किद की गई थी। उन्होंने कहा, कुरान इल्म है और कुरान में कोई खुशकुतर ऐसा नहीं है जो किताब मुबीन में ना हो। अब इस किताब मुबीन को वही पढ़ सकता है जिसको अल्लाह ने इमाम मुबीन बनाकर भेजा है। मजलिस का आगाज कारी रदीम नजफी की तिलावत और उन्हीं के कलाम से हुआ और निजामत के फराइज अबूजर कंतूरी ने अंजाम दिए। एहतियाती तदाबीर के साथ कौम को मस्जिद बुलाना भी बहुत जरूरी। शाह मोहम्मद अली आरिफ उर्फ सब्बू मियाँ सज्जादा नशी और मुतवल्ली दरगाह शेखुल आलम रिदौली ने अनलॉक होने के बाद मस्जिदों पर एहतियाती तदाबीर के तहत लगने वाली पाबंदियों के पेश नज़र कहा, हालात के पेश नज़र हुकूमती गाइडलाइन पर अमल करते हुए फैसले का खैर मकदम होना चाहिए। जहाँ 5 की तादाद मुख्तस है वहाँ तादाद बढ़ाने की मांग करनी चाहिए और जहाँ समाजी दूरी के साथ नमाज की इजाज़त है वहाँ इस पर सख्ती से अमल होना चाहिए। इसी तरह बुजुर्गान दीन के आस्थानों पर भी क़वानीन की सख्ती के साथ हाजिरी का नज़्म होना चाहिए क्योंकि दोनों मकाम से मुसलमानों को रूहानी अकीदत और वाबस्तगी है। मौलाना सैयद हैदर अब्बास का बयान भी आखिरी सफ़े पर शाये हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है, जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत के लिए मशहूर ज़माना अमरीका की हुकूमत माइल बज़वाल है और अनकरीब रहबर इनकलाब की पेशीनगोई के तनाजुर में हम सब अमरीकी इख्तिदार की पसपाई का मुशाहिदा करने वाले हैं। क़िल्लत आब से मुताल्लिक़ खबर लखनऊ के गुप्तापल्ली इलाके की है जहाँ के लोगों ने मसाइल के बारे में बात करते हुए कहा है कि जब से ये लोग यहाँ रह रहे हैं तब से पानी की किल्लत जारी है। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 5 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। बाल्टियां लेकर घर के लोग आधे किलोमीटर दूर ट्यूबवेल से भरने जाते हैं। बताते चले ये परेशानी ऐसे इलाके में है जो इको गार्डन के नजदीक है। ऑनलाइन फोक सिंगिंग और मोनोलॉग एक्टिंग के नतायज जारी। रिदम डांस फैक्ट्री और आर्टिस्ट अड्डे के जरिए मुनक़िदा ऑनलाइन फोक सिंगिंग और मोनोलॉग एक्टिंग के नतीजे जारी कर दिए गए हैं जिसमें जौनपुर के हर्ष सेठी ने मोनोलॉग एक्टिंग में पहला मकाम हासिल किया है। दूसरे उम्मीदवार जौनपुर के प्रमोद गुप्ता है। तीसरे मकाम पर लखनऊ की निशा गुप्ता, चौथे पर राखी जायसवाल और 5वें मकाम पर जौनपुर की श्रेया यादव रही हैं। अंजलि फिल्म प्रोडक्शन की जानिब से कामयाब उम्मीदवारों को शॉर्ट फिल्म में मौका दिया जाएगा। देखो अपना देश मौजू पर ऑनलाइन वेबिनार। हुकूमत हिंद की निहायत अहम स्कीम एक भारत उम्दा भारत के तहत महाराजा बिजली पासी गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ के ABSB क्लब ने भारत की तारीख और तहजीब और तारीखी शहर लखनऊ पर देखो अपना देश मौजू पर एक ऑनलाइन वेबिनार का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह प्रोफेसर डॉक्टर मंजू दीक्षित ने किया और कॉलेज के ABSB प्रोग्राम की नोडल अफसर डॉक्टर सनोबर हैदर ने प्रोग्राम की निजामत की। मुकर्रिर खास विक्रमजीत सिंह रूपराय रहे और दिल्ली के मौर्रिख ने सिंध घाटी तहजीब की कदीम तहजीब के बारे में तफसीली रोशनी डाली। इन इत्तलात के अलावा शायद खबर इस तरह है, अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी पर समाअत 16 जून को और करबला मलका जहां ऐशबाग लखनऊ में 21 शव्वाल बरोज इतवार को 2 बजे दिन में कदीम बशारती ताबूत जो मलका जहां साहिबा ने बशारती ताबूत के उन्वान से कायम किया था, इमसाल कोरोना वायरस में लॉकडाउन की पाबंदियों के सबब ये अवामी ताबूत मुलतवी किया गया है। आखिरी सफ़े पर एक इश्तिहार भी शाये हुआ है जिसकी तफसील इस तरह है। अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ की जानिब से कोरोना वबा के शुबहात और हकीकत के उन्वान से मौरखा 14 जून 2020 बरोज इतवार शाम 3:45 पर मशहूर मारूफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर कौसर उस्मान का जूम ऐप पर एक इंटरेक्टिव सेशन रखा गया है जिसकी मीटिंग ID है 854-1753-4314 और पासवर्ड है 445566। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए epaper.awadnama.com पर लॉग इन करें। अब पेश खिदमत है अवधनामा में शाये मज़ामीन का तारुफ। निज़ाम तालीम पर कोरोना का असर के उन्वान से अवधनामा इदारिये में तहरीर कर रहा है। कोरोना के इस दौर में जब सब कुछ धर्म व बरहम हो गया है, ऐसे वक्त में तालीमी निज़ाम भी इससे अलग नहीं रह सकता। इस वजह से तलबा की तालीम पर असर पड़ना लाजमी था, लेकिन उनकी ज़िंदगी की हिफाजत भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए तालीमी इदारों को बंद करना पड़ा। जैसा कि कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद से तालीमी इदारे खोले जाने की उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से हमारे मुल्क में कोरोना के केस मुसलसल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो इस माहौल में स्कूल और कॉलेज खुलने के बाद भी पहले की तरह क्लास लगना मुश्किल ही होगा। सफ़े के बलाई हिस्से पर शायद मजमून मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का है जिसका उन्वान है बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए। आप अपने मजमून में रकम तराज है।
हम कोरोना के साथ साथ बढ़ती हुई फिरका परस्त ताकतों से भी जंग कर रहे हैं, मगर कब तक? हिंदुस्तान के चौराहों और दीवारों पर सिर्फ ये इबारत लिखी जानी बाकी है कि हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। सवाल ये भी है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? जब हिज़्ब मुखालिफ खामोश हो, कांग्रेस मुर्दा हो, सेकुलर पार्टियों और जमातों ने आपको तनहा छोड़ दिया हो, तो आप क्या कर सकते हैं? महाराष्ट्र, राजस्थान की हुकूमतें गिराने का खेल जारी है। मध्य प्रदेश में हम इस खेल को देख चुके हैं। ये भी एक अहमकाना सवाल है कि हमारा वोट किसको जाता है। हम वोट किसी और को देते हैं, हुकूमत किसी और की बन जाती है। एक दिन वो इस कदर ताकतवर हो जाएंगे कि हमारी हैसियत कठपुतली से ज्यादा नहीं होगी। दूसरी तहरीर डॉक्टर सलीम खान की है, जिसमें वो अदालत के हालिया फैसले का जिक्र करते हुए लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून 2020 को एक फैसला सुनाया जिसको पढ़कर पहले तो हंसी आया और फिर रोना आया। अदालत उज़्मा ने यह हुक्म दिया कि तमाम तारिकीन वतन मजदूरों में से अपने आबाई मकामात का सफ़र करने के ख्वाहिशमंद अफराद को 15 दिन के अंदर वापस भेज दिया जाए। हंसी इसलिए आई कि जिन मजदूरों को अपने आबाई वतन जाना था वो तो जैसे तैसे हज़ारों मील का पैदल सफ़र करके अपने वतन जा चुके। उनमें से कई हादसात का शिकार होकर इस दुनिया से सिधार गए, लेकिन अब जबकि मुख्तलिफ सूबों ने मसलन महाराष्ट्र ने ये ऐलान कर दिया कि उनके पास एक भी ऐसा मजदूर नहीं है जो अपने घर जाना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ने फरमान सादिर किया। अदालत के फैसले में यह भी कहा गया है कि मुतालबे के 24 घंटे के अंदर रेलवे के जरिए उनके लिए श्रमिक खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया जाए। ये एक ऐसा हुक्म है जिस पर अमल नामुमकिन है, इसलिए ट्रेन में कम अज कम 1000 लोग सफ़र करते हैं, इसलिए किसी के मुतालबे पर एक दिन के अंदर ट्रेन का एहतमाम मुमकिन नहीं है। इस फैसले पर रोना इसलिए आया कि अगर 2.5 माह कबल हमारी अदालत ख्वाब गफलत से बेदार होती तो इन करोड़ों लोगों को बेशुमार सऊबत से बचाया जा सकता था। लेकिन अफसोस कि वो हुकूमत की हर किस्म बयानी पर आँख मूंद कर यकीन करती चली गई। अदब ज़िंदगी के सफ़े पर पहला मजमून कौसर हयात का जदीद हिस्सियत का शायर डॉक्टर सलीम नवाज हश्र जाफराबादी शाये हुआ है, जिसमें सलीम नवाज की शायरी पर वो तबसरा करते हुए लिखती हैं, दक्कन के ज़िला जालना से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत डॉक्टर सलीम नवाज हश्र जाफराबादी का तारुफ पेश खिदमत है, जो अशार के ज़रिए मौसर तरीक़े से अपनी बात कारी तक पहुँचाने का हुनर जानते हैं। उन्हें शेरगोई से शगफ़ है, फितरी मंजर कशी हो, इंसानी अमल हो कि सियासी निज़ाम या फिर माशरती अक्स हो, अपनी फ़नी सलाहियत से इस खूबसूरती से शेर में ढालते हैं कि कलाम दिल को छू ले। मुनाजात के चंद अशार पेश खिदमत हैं। हिर्स दिल से निकाल दे अल्लाह, मुझको रिज़्क़े हलाल दे अल्लाह, जाने दुश्मन रफ़ीक बन जाए, मुझको ऐसा कमाल दे अल्लाह, लुक़्मा तर उठाऊं जब भी मैं, बेकसों का ख्याल दे अल्लाह। डोनेशन के उन्वान से शायर अफसाना असलम आज़ाद शमसी का है, जिसका एक इक़्तिबास इस तरह है, फैसल बाहर की ओर चल पड़ा, उसके साथ साथ वो अंग्रेज़ की तरह दिखने वाला शख्स और आगे पीछे और कई लोग भी राह रवा थे। कुछ देर बाद फैसल प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी पर था। अभी ऊपर पहुंचा न था कि सूट बूट में मलबूस शख्स यक बयक सीढ़ियों से गिरते हुए ज़मीन पर आ गया। फैसल भागकर नीचे आया और आनन फानन एक नामालूम शख्स की मदद से उसे कंधे पर उठाकर बाहर आ गया। इसी सफ़े की एक और तहरीर अदब अतफाल से मुतालिक शाह ताज की है, जिसका उन्वान है बाल की खाल निकालना। इसके अलावा सफ़े के दाईं और बाईं जानिब मज़ाहिर हुसैन इमाद आकिब की नज़्म वेतन नहीं मिला और खान हसनैन आकिब की नज़्म फलक से उतरी एक परी शाये हुई है। मुतफर्रिक इशाअती मज़ामीन में पहली तहरीर डॉक्टर मोहम्मद नजीब कासमी संभली की है। वो कोरोना वबाई बरस के साए में हमारी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल कैसा हो के उन्वान के तहत रकम तराज है। वो इदारे और हुकूमतें जो पहले लॉकडाउन के हक़ में थे, अब वही ये कहने पर मजबूर हैं कि अब हमें इस बीमारी के साथ ही जीना होगा। चुनांचे इस मरज़ में मुब्तला अफराद और मरने वालों की तादाद में रोज़ाना इजाफा होने के बावजूद अब वही इदारे और हुकूमतें शराब की दुकानें, दाखिली परवाज़ें, रेलगाड़ियाँ, बसें और हत्ता के बाज़ारों को खोलने के ऐलानात कर रहे हैं। अब चूंकि हमें इस मरज़ के साथ ही दुनिया में रहना है, तो दुनिया में आई इस मुसीबत के वक्त हमें चाहिए कि इस वबाई मरज़ से बचने के लिए दीगर तदाबीर इख्तियार करने के साथ आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक कलौंजी का इस्तेमाल शुरू करें। अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है कि न सिर्फ हम अपनी ज़ात को बल्कि हज़ारों इंसानों को इस बीमारी से महफूज रख सकते हैं। आज से तकरीबन 1400 साल कबल तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलौंजी इस्तेमाल किया करो क्योंकि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है। दूसरी और आखिरी तहरीर फारूक ताहिर की है, जिसमें वो कोरोना और तालीम से मुतालिक अपने मजमून में तहरीर करते हैं।
आज के दौर में ऑनलाइन तरीक़े तालीम कोई नई बात नहीं है। दुनिया भर में डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ाकर डिग्रियां भी फराहम कर रही हैं, लेकिन मौजूदा हालात में जब वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने जैसी इस्तिलाहात रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुकी हैं, वहीं अब बात घर से तालीम यानी घर से दर्स व इक्तिसाब तक जा पहुंची है। ऑनलाइन तरीक़े तालीम ने फ़वाइद और नुकसानात अपनी जगह, कोरोना वबा के दौरान ये हमारे लिए एक मजबूरी बन चुके हैं। अब मसला असातिज़ा, तलबा और वालिदैन का है कि वो एक निज़ाम से दूसरे निज़ाम को मुंतकली के दौरान दरपेश नफ्सियाती मुश्किलात, हक़ाइक़ और हंगामी सूरत हाल से कितना जल्दी मुताबिकत पैदा करते हैं। ई लर्निंग और डिजिटल तकनीक से लैस अफराद, असातिज़ा और तालीमी कौस से वाबस्ता अफराद पर मबनी रज़ाकार वॉलंटियर्स की एक जमात की तश्कील बहुत ज़रूरी है जो जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई से महरूम तलबा तक इल्म व मालूमात को बहुम पहुँचा सके। अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ की जानिब से कोरोना वबा के शुबहात और हकीकत के उन्वान से मौरखा 14 जून 2020 बरोज इतवार शाम 3:45 पर मशहूर मारूफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर कौसर उस्मान का जूम ऐप पर एक इंटरेक्टिव सेशन रखा गया है, जिसकी मीटिंग आईडी है 85417534314 और पासवर्ड है 445566। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से प्रभावित और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार अवसर कराने के उद्देश्य से रियाज हॉस्पिटल के सर्वे सर्वा डॉक्टर खालिद रजा आजमी के अधिगृहित इकाई में हाईटेक मेडिकल डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड में उत्पादन शुक्रवार 12 जून से पूरी तरीके से शुरू हो गया। कोरोना संक्रमण काल के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को काम देने के लिए उन्हें रोजगार देने के लिए उत्पादन फैक्ट्री शुरू की गई है। डॉक्टर आजमी ने बताया कि गीडा के सेक्टर 13 स्थित नई इकाई में भी IV कैनुला के सभी वेरिएंट का निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि इस इकाई की लागत लगभग 6 करोड़ रुपए है, जहां लगभग 100 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यम किए जाने हेतु व्यक्तिगत एवं समूह के माध्यम से ऋण प्राप्त किया जाना अति आवश्यक हो तो ऋण आवेदन पत्र डूडा कार्यालय प्रयागराज निःशुल्क कार्यालय समय में प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसके लिए आवश्यक विवरण में प्रमुख है कि आयु 18 वर्ष से ऊपर हो, नगर निगम सीमा क्षेत्र का निवासी हो तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हो। सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोनखर से त्रिलोकपुर गांव पर जाने वाले सड़क पूर्व से अतिक्रमण के चलते अवरुद्ध हो गए थे। ग्राम प्रधान की सूचना पर मौके पर उप जिलाधिकारी शिव मूर्ति सिंह ने पहुंचकर मुआयना करके तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण को हटाया और अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी देकर कार्रवाई की बात की। अंबेडकर नगर के मीरानपुर मोहल्ला में बन रही सड़कों के निर्माण में आए दिन घटिया क्वालिटी की सामग्री लगाने और मानक के विपरीत निर्माण करने की शिकायत मिल रही है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वार्ड नंबर 8 व 9 गली में रहने वाले लोगों का कहना है कि निर्माण के लिए पुराना इंटरलॉक फिर से उखाड़कर बिछाने का काम किया जा रहा है, ना तो नाली की साइड बनाई जा रही है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक जानकारी देने के लिए भाजपा ने परिवार संपर्क अभियान चलाया है। अभियान के तहत बूथ स्तर पर कार्यकर्ता प्रत्येक परिवार से संपर्क करके उन्हें प्रधानमंत्री की तरफ देशवासियों को संबोधित पत्र का वितरण कर रहे हैं। रानी बाजार मंडल में सांसद लल्लू सिंह व तरुण मंडल में जिलाध्यक्ष संजीव सिंह के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत हुई। विधायक में इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू, शोभा सिंह चौहान, रामचंद्र यादव, बाबा गोरखनाथ ने अपनी अपनी विधानसभा में पत्रक वितरित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। देवबंद में कोरोना काल में सेवा देने वाले अध्यापकों को सम्मानित किया गया। नगर के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में पिछले 2 माह से ड्यूटी कर रहे परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों का अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा ने स्वागत करते हुए उन्हें कोरोना सेवा सम्मान से नवाजा। ब्लॉक संसाधन केंद्र गुनारसा में शुक्रवार को आयोजित हुए कार्यक्रम में 60 अध्यापकों के अलावा खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार को भी सम्मान दिया गया। अलीगढ़ की तहसील इगलास कोतवाली क्षेत्र के गांव जवार में शुक्रवार को दर्दनाक घटना हुई। घर के बाहर 2 बच्चियां खेल रही थी, तभी मैक्स जीप के चालक ने 2 बच्चियों में टक्कर मार दी। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को उपचार के लिए ले जाया गया। रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आजमगढ़ में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने एक और आरक्षण काउंटर खोल दिया है। 1 जून से पहले एक ही काउंटर खुला था। टिकट लेने व वापस करने वाले यात्रियों की भीड़ दिनों दिन बढ़ते देख विभाग ने दूसरा काउंटर खोलने का निर्देश दिया है। काउंटर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खोले जाएंगे। कानपुर में आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के विरोध में तीनों महासंघों के आह्वान पर OEF फूलबाग कानपुर में संयुक्त मोर्चे के बैनर तले किला मजदूर यूनियन ने स्ट्राइक बैलेट किया, जिसमें काफी संख्या में कर्मचारियों ने हड़ताल के पक्ष में मतदान किया। हड़ताल के पक्ष में 1532 मत पड़े, जबकि विरोध में मात्र 16 मत। इस मौके पर किला मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सिद्धनाथ तिवारी, महामंत्री जफर अहमद ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा। अब होश के नाखून ले ये अहले सितम वरना रखता है कलम मिसले तलवार अवधनामा।